some single personality. There was no such thing called Sikhism before Guru Gobind Singh appeared on the scene. There was no such thing called Parsi religion before Zarathustra came and took birth. There was no such religion like Islam before Muhammad Nabi came. There was no Buddhism before Shuddhodana gave birth to his son, Siddhartha, Prince Siddhartha. There was no Jainism before Mahavir came. And there was no Yahudi religion, Judaism, before Moses went up Mount Sinai, spoke to God and brought his tablets of the 10 Commandments. You see? So all these, therefore they are called prophetic religions. All the living religions have derived from the teachings of some prophet. See, some Messiah, Rasul. And from that time, his teachings coalesce in the form of, even these prophets did not leave any mazhabbi doctrine or theology and tenet and all that. They gave some lofty teachings. They gave some very sublime, good teachings to the people of their times. They had to be different because they were born in geographical locations, historical times and social conditions, and felt need of those social conditions and geographical environment and historical times. They had to give a suitable teachings. Therefore the difference even in the teachings of the prophets, apparent difference. जो हर साल बाढ़ आकर के हजारों आदमियों को, जानवर को और गांवों को बहा करके ले चले जाता है, ऐसा एक कंट्री में, हिंदुस्तान में स्नान करके ही पूजा कर बोला. यू कैन अंडरस्टैंड. एवरीवेयर देयर इज पानी. जमीन में पानी, आसमान में पानी, अंधाधुंध पानी. उसलिए 3 बार भी स्नान करके पूजा. अरबिस्तान, रेगिस्तान, पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है. वहां आया हुआ प्रॉफिट बोले कि स्नान करके पूजा, जन्म भर पूजा ही नहीं करेगा. और पूजा करने की क्या बात है. शौच गया तो, टट्टी गया तो पानी लेकर के हम धोते हैं. वो पानी कहाँ, पीने के लिए पानी नहीं, फिर साफ करने के लिए पानी. पत्थर से वो साफ करके पत्थर को फेंक देते हैं. उनकी दूसरा चारा नहीं है. सो दे कैन नॉट इन्वॉल्व वाटर. जल चढ़ाओ महादेव जी के ऊपर. अरे कहाँ जल चढ़ाए हैं समाज, तो काबा के ऊपर जल कैसे चढ़ाए. सो नेचुरली these external differences of ceremony, ritualistic, these acts which denote it, they have to differ. See? तो प्रसाद चढ़ाने के लिए तो जहां पर वो जाति तो चढ़ा सकता है. अरबिस्तान में तो वहां खजूर चढ़ाएगा. अरबिस्तानी यू कैनॉट एक्सपेक्ट हिम टू नारियल और केला ले जाकर के तुम मंदिर में जाओ बोला तो हाउ कैन यू डू इट. इट इज नॉट अवेलेबल देयर. एंड in the same way, in far off Tibet, where 12 months it is snowbound, you cannot ask them to, फूलों से तुम बेलपत्ता से और तुलसी से तुम अर्चना. Unrealistic, because nothing grows there. Therefore, the outer modes of human living, eating, drinking, dressing, living, worshipping, the rituals, the ceremonials, the rites, they have to differ. जहां जंगल नहीं है, जहां लकड़ी नहीं मिलता है, दहन संस्कार कैसे संभव है. उनको बोलता है जमीन में गाड़ दो. तो रेती को ये करके जमीन में गाड़ दो. इन मिडिल ईस्ट, इन डेजर्ट कंट्रीज, यू कैन नॉट हैव चिता एंड यू कैन नॉट हैव, बिकॉज देयर इज नो लकड़ी. इवन कैमल्स हैव टू ब्राउज अपॉन कांटेली, ओ जंगल झाड़ी थोड़ा बहुत जो होता है. वी हैव गॉट ट्रीज इन प्लेंटी. Of course, now we are fast denuding them. So we can to have cremation. Therefore, hota hai. So if you understand with a little vichar, with a little reflection and thinking, you find differences are only superficial, and differences are only external. Differences are only in the formal modes which have to differ. See, बड़ा से बड़ा
अमीर हो, जमींदार हो, लखपति हो, करोड़पति हो, मद्रास में गया तो वो कॉटन रुई का ही कपड़ा पहनेगा, धोती पहनेगा, और ऊपर जितना कम से कम पहन सकता है उतना ही पहनेगा, नहीं तो पसीना से वो बिल्कुल परेशान हो जाएगा। क्योंकि वहां पर वो कोई बड़ा, वहां का मैकॉले जब गया तो ही राइट्स व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, द हॉट सीजन एंड द हॉटर सीजन। दो ही मौसम है, गरम मौसम और अवगरम मौसम, ऐसा। तो बर्फीली इसमें रहे हुए आदमी, उन लोगों को, सो यू कैनॉट एक्सपेक्ट। शेयर जो केदारनाथ बद्रीनाथ रावाल है, पूजा करता है खूब, वो स्वेटर पहन करके, ऊन का कोट पहन करके ही जा करके आरती करना पड़ता है। जब -7 डिग्री 10 डिग्री 12 डिग्री टेम्परमेंट में बाहर पानी बर्फ जम जाता है, ऐसा जगह में ही कैनॉट अफोर्ड। दो ही कम्स फ्रॉम साउथ इंडिया, आता है केरल से, लेकिन यहां पर रिवाज ऐसा है, पूरा ड्रेस पहन करके अपना वर्शिप करना पड़ता है। तो दीज आर ऑल ओनली एक्सटर्नल डिफरेंसेस, बट व्हाट इज इट दैट मेक्स होल ऑफ भारतवर्ष वन? आवर कॉमन एंसेस्ट्री। We had only one religion, and that is the only one religion that exists even today. मैं कहा तो आप हंसेंगे, मैं एक सवाल पूछता हूं आपको। हम लोगों की मजहब का बात एक तरफ रखेंगे एक मिनट के लिए। भगवान का मजहब क्या है? What is the religion of God? धरती में, ह्यूमन सोसाइटी में इंसान आकर के आने के बाद कुछ ना कुछ मजहब शुरू किया, मजहब दिया। जब इंसान का सृष्टि ही नहीं हुआ था, ना ये प्लैनेट अर्थ रहा, ना सन मून स्टार्स, ये ब्रह्मांड था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, केवल मात्र एक ओंकार सदनाम बोलता है, अदर अमर अविनाशी, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्मा। जब वो ब्रह्म तत्व, वन विदाउट ए सेकेंड, गॉड अलोन एग्जिस्टेड, व्हेन ही हैड नॉट सेड लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी वाटर्स, लेट देयर बी लैंड, लेट देयर बी, अब ऐसा सृष्टि हुआ ही नहीं था। इवन जेनेसिस हैड नॉट बीन रिटन इन द ओल्ड टेस्टामेंट। जब सिवाय अल्लाह खुदा के और कोई इंसान था ही नहीं, आदमी था ही नहीं, तब वो जो तत्व है जिसको आप अल्लाह कहो, अहुरा मजदा कहो, अलमाइटी फादर इन हेवन कहो, यहोवा कहो, ब्रह्म कहो, भगवान कहो, निर्वाण कहो, सिद्ध कहो, अरिहंता कहो, वो कुछ भी कहो, जब वो एक प्रिंसिपल, एक तत्व बिना कोई दूसरे तत्व के था, तो उसके लिए कोई मदद था? ना उसके लिए कोई ग्रंथ था। देयर वाज नो स्क्रिप्चर एग्जिस्टेड, नो प्लेस ऑफ वर्शिप, ना गुरुद्वारा, ना मस्जिद, ना मंदिर, ना चर्च, ना सिनेगॉग। देयर वाज नाइदर एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, देयर वाज नाइदर एनी स्क्रिप्चर, देयर वाज नाइदर एनी ह्यूमन रेस, there was neither any country, there was neither planet, there was neither सूरज चंद्र तारा। उस समय में जो एक अनादि अनंत अमर तत्व, शांति स्वरूप आनंदमय वो तत्व था, क्या मजहब था, उनका क्या रिलीजन था? God had no religion of his own. He had no scripture, he had no place, he had no worshipper even. He created everything afterwards. And due to the variety of people he created, he had to give something to suit everyone.